No, sir, not yet. अभी भी नहीं. अब आ रहा है पीपीटी? No, sir, not yet. Sir, would you just close for once and reshare? अच्छा, rejoin करूं? नहीं, reshare, just reshare. Okay. Has it come? No, no. नहीं आ रहा है. नहीं. This is funny. Sir, rejoin करके try करते. Then ठीक है, share desktop screen, share screen करके. अच्छा. Okay, I go to open share tray. यही ऑप्शन है ना इसमें? आपकी आवाज नहीं आ रही है दोनों में से किसी की. Share screen. मेरे इसमें ये दिखा रहा है ओपन शेयर ट्रे. Share screen. ओके, अब आ रहा है. Yes, sir. Got it. एंड एक मिनट, ये स्लाइड्स चेंज भी हो रही है मैडम? Yes, slideshow mode में आ गया. Yes, great. ठीक है मैडम. So let me just introduce you, sir. Please. So good evening once again to all participants. Today's our uncertainty journey. For today's session, we have very eminent speaker with us, Dr. P.K. Joshi from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Our today's lecture will be on GIS and remote sensing. So let me invite our prime anchor, Mr. Vinay, to introduce sir. Vinay, over to you, please. Thank you, ma'am. Am I audible? Hello, namaste. A very good evening to all. I, Vinay Limbarkar, on behalf of the Applied Mechanics Department, LD College of Engineering, Ahmedabad, and the Government Engineering College, Modasha, welcome you once again for the third session of the session day of this 5 days short-term training program on the disaster management and the resilience building conducted under the aegis of the Directorate of the Technical Education in collaboration with the Gujarat Institute of Disaster Management, Gandhinagar. It gives me immense pleasure to invite our next speaker, Dr. P.K. Joshi, sir, who is the chairman person at Special Center for Disaster Risk and Disaster Research and the professor at School of Environmental Science, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Prior to shifting to New Delhi in 2007, sir was with the Indian Space Research Organization for around a decade. During this, sir was also adjunct faculty to the Center for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific, which is an unaffiliated institution. Sir holds a PhD degree in the environment science. Professor Joshi sir has immensely contributed to understanding geosphere and the biosphere interaction while using inputs from the Earth observation system and the geospatial technology. Sir has addressed some of the pressing questions related to the climate change while integrating the data sets from the variety of land use, land cover, glacier, precipitation, and the temperature regimes. Sir's research work also contributes to disaster risk reduction while assessing the impact and the vulnerability of the climate change. Sir has now spent more than 2 decades actively contributing to a wide range of training, research, and the academic programs in the field of geospatial analysis.
Sir is a recipient of the Indian Academy of the Science and the National Academy of the Science India, Young Scientist Medals, National Remote Sensing Award, and the National Award for the Geospatial Excellence for ISRO. Sir is also a fellow of the Indian Academy of the Environmental Science, the Indian Geophysical Union, and the National Academy of the Agricultural Science. Sir has more than 150 publications to his name. Sir is the founding president of the Indian Regional Association for Landscape Ecology and the chairman of the Indian Society of Remote Sensing, Delhi chapter 2022 to 2024. Sir also has a lot of experience in the field of teaching. Recently, Sir was recognized as a KTP visiting fellow of the University of Technology, Sydney, Australia. Finally, Sir possesses a scholarly record coupled with the strong leadership skill and the networking capabilities, and made a significant contribution as a scientific administrator and in promoting the scientific research inter alia through the both publication and outreach activities. Now, I would like to request Professor Joshi sir to share his wonderful experience and the words of wisdom with us on the concept of the role of remote sensing and GIS in the disaster risk reduction. Over to you, sir. चलिए, thank you very much. So what I will do is, in given roughly 1 hour of time, I will try to tell you all कि how geoinformatics, जो हम generally remote sensing, GIS, GPS technology की बात करते हैं, how it could be used for disaster management or kind of things. So what we see आज की तारीख में, if we try to see around, so we are just with the word of emergencies, whether it is volcano, forest fire, GLOF. आप हिमालयाज में देखिए तो रेगुलरली क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है. कोस्टल एरियाज में देखिए तो वहाँ पे साइक्लोन फ्लडिंग रहती है. और अगर आप अर्बन एरियाज में देखिए तो उसमें अर्बन फ्लडिंग, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, दूसरे प्रॉब्लम्स सिर्फ इंडिया में नहीं, एंटायर ग्लोब में हो रहे हैं. और ये सारी इमरजेंसीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जैसे ही हम ये देखते हैं कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड ह्यूमन बींग्स. सो आज की तारीख में वी गेट टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बींग इज एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, and any kind of hazard when it is coming, so that becomes disastrous because of the presence of human beings. So at the international level, whensoever we try to understand these kind of things, so one of a very common thing which entire all countries talk about is sustainable development goals. And I hope कि जो हमारे audience हैं आज, उनको पता होगा कि there are 17 sustainable development goals यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और हर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया कोई भी एक्टिविटी करती है तो समवेयर दे ट्राई टू एड्रेस दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. उसी के साथ एक फ्रेमवर्क है विच इज कॉल्ड एज सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. सो पहले, इससे पहले हायोगा फ्रेमवर्क था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे. सो ये दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दोनों 2015 में शुरू हुए और 2030 में कल्मिनेट हो रहे हैं. जब हम डिजास्टर्स को और डेवलपमेंट को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक तो जो हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स और बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड. और दूसरा जो उससे भी बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलियंस के बारे में, कि कैसे हम इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि डिजास्टर के कारण कम प्रॉब्लम्स आए. सो इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, कनेक्टिविटी, एनर्जी, दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर आप कोशिश करें लिस्ट करने की कि कौन से इनोवेशंस हुए हैं जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ड्रोन्स, सोशल नेटवर्किंग, इस तरह की चीजें काफी कॉमन हो गई हैं इन लास्ट 10 years. Everybody talks about remote sensing input, GIS, drone mapping. इसी तरह से अप्रोचेस की बात करें तो हैजार्ड, क्राउड सोर्सिंग, इस तरह की मैपिंग जिसमें ज्यादा कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहे, वो अप्रोचेस ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए. ये सारी चीजें कैसे शुरू हुई? 1946 में फर्स्ट टाइम स्पेस से इंडिया वर्ल्ड की फोटोग्राफ ली गई
और जब इस तरह की फोटोग्राफ देखी तो काफ़ी लोगों ने ऐसे सोचा, जोग्राफर्स ने, फॉरेस्टर्स ने, जियोलॉजिस्ट ने, कि वी शुड बी एबल टू सी अर्थ सरफेस एंड वी शुड बी एबल टू मैप एंड मॉनिटर द फीचर्स विच आर देयर ऑन द अर्थ सरफेस. Since then we get to understand कि many of the countries, they all are in space exploration. और 1957 में स्पुतनिक 1 जब सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली. आज की तारीख में लगभग 75 कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जो अपने खुद के सैटेलाइट्स बनाती हैं, और 15 कंट्रीज ऐसी हैं जो इन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकती हैं. सो हम सभी को बड़ा अच्छा, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपके अहमदाबाद में भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है एक यूनिट. सो इंडिया जो है टॉप 3 कंट्रीज में है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग और लॉन्चिंग सैटेलाइट्स. सो वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन दैट मैटर. सो और वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो लगभग 100 से ज़्यादा लॉन्चेस होते हैं हर साल, और बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगल लॉन्च में 10, 20, 50, 100 सैटेलाइट्स भी लॉन्च की जा सकती हैं. ये सैटेलाइट्स जो मोटे तौर पर जो होती हैं, 2000 मीट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी जिनको बोलते हैं, या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसको हम लोग जनरली जीपीएस सैटेलाइट्स जो बोलते हैं. तो ये मेट्रोलॉजी का, कम्युनिकेशन का, अर्थ को मैप करने के लिए या नेविगेशन के लिए इन सैटेलाइट सिस्टम्स का यूज होता है. सो अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को देखें तो हर कंट्री अपनी तरह से सैटेलाइट सिस्टम्स बनाती हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च करती है. इंडिया का एक स्पेशल रोल रहता है, वो करता है मिशन मोड में, कि कैसे हम मिशन मोड में इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, फॉरेस्ट कवर हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, कैडेस्ट्रियल मैपिंग हो, अर्बन एरिया की हो. सो उस तरह से इस तरह की एक्टिविटीज़ को इंडिया कोशिश करता है एड्रेस करने के लिए. अब जब भी ये चीज़ें आने लगी तो यूनाइटेड नेशंस ने एक जनरल असेंबली में एक अपना यूनिट बनाई और प्रोग्राम बनाया जिसको दे कॉल इट यूएन स्पाइडर, यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म फॉर स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स. ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है एक गेटवे या एक ब्रिज या एज अ फैसिलिटेटर. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब 2004 में सुनामी फर्स्ट टाइम आया तो हम लोगों को जब लोगों ने कोशिश की स्टडी करने की आसपास सुनामी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये देखा गया कि कोई भी सैटेलाइट ऐसा नहीं था जो सुनामी की पिक्चर ले सके. तो तब यूनाइटेड नेशंस ने सोचा कि हमें इस तरह का एक अरेंजमेंट करना चाहिए कि डिफरेंट कंट्रीज आपस में पार्टिसिपेट करें और डिजास्टर के मौके पे खास तरह से अपने डेटा सेट्स वो सब शेयर करें. इसमें यूरोपियन यूनियन, फ्रेंच, कैनेडियन, इंडिया, जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, सारी कंट्रीज जिनके पास भी इस तरह की कैपेबिलिटीज हैं, दे केम टुगेदर, एक चार्टर डेवलप किया कि जब भी कोई डिजास्टर होगा तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे. जैसे आप लोगों को ध्यान होगा अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में फ्लडिंग हुई तो इंडिया ने भी अपने सैटेलाइट डेटा सेट से या अपने रिसोर्सेज से उनको हेल्प किया. इररिस्पेक्टिव ऑफ किस तरह के हम रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, जब डिजास्टर आता है तो सारी कंट्रीज अपना रिमोट सेंसिंग तरह के इनपुट्स प्रोवाइड कर सके. और इनसे फायदा क्या होता है? वन इज कम्युनिकेशन. सो जनरली जब डिजास्टर आता है तो ऑल अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक स्टैंड स्टिल हो जाते हैं. सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से इस तरह की चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है. अर्थ ऑब्जर्वेशन जनरली मैप करता है और बताता है कहाँ पे किस तरह का लॉस हुआ है, कहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा आया है, कम आया है, ताकि आप उन एरियाज के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें. और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसको हम जीपीएस बोलते हैं, वो किस तरह से एफिशिएंटली उस लोकेशन में जाया जा सकता है, उस तरह के डिटेल्स प्रोवाइड करता है. तो जनरली जब हम जियोइंफॉर्मेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें रिमोट सेंसिंग होता है विच इज मोर ऑफ अ डेटा कलेक्शन टेक्निक, जिसमें आप स्पेस से, एरियल प्लेटफॉर्म से, ड्रोन से, डिफरेंट तरीके से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करके उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. दूसरा होता है जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन जो लोकेशन से जानी जाती है, जिसका लोकेशन से जिसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, वो जीआईएस एनवायरनमेंट में आता है. जीपीएस जो है जीएनएसएस
ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये अपने में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जिससे हमें सिर्फ अपनी लोकेशन पता नहीं चल रही, हम डेटाबेस भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ट्रैक करना है, कुछ मॉनिटर करना है, तो उस तरह की एक्टिविटीज भी इसमें की जा सकती हैं। सो शुरू में तो ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के जैसे लोग काम किया करते थे, छोटे छोटे डेटाबेसेस क्रिएट करते थे। ग्रेजुअली हम क्या देख रहे हैं कि ओवर द इंटरनेट पीपल आर getting connected with each other, and as a society we have evolved and we are trying to develop information or data set something very quickly. This is example of tsunami. This is a satellite data which was captured on 10 January 2003. This all green is forest or vegetation, and this light green is agriculture, ये settlements हैं, these all are water bodies. और जब दिसंबर 25 और 26 को जब सुनामी आया, सो ये पूरा जितना ग्रीन एरिया था वो पूरा वॉश आउट हो गया, एग्रीकल्चर एरिया डिस्ट्रक्टेड हो गए, पूरे एरिया में पानी इनंडेशन हो गया। सो सैटेलाइट डेटा से हम बहुत क्विकली इस तरह के असेसमेंट्स कर सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह के लॉसेस हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ आई। इससे पहले एक इवेंट हुआ था विच इज भुज अर्थक्वेक, जो गुजरात में ही हुआ। तो दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ अंजर बिफोर अर्थक्वेक एंड आफ्टर अर्थक्वेक। सो रिमोट सेंसिंग डेटा सेट से ही आइडेंटिफाई किया गया किन एरियाज में किस तरह के लॉसेज हुए हैं, और ये पाया गया कि अरे इस तरह के डिजास्टर्स के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में भी अगर आप देखें तो दो डिजास्टर्स काफी सालों से आ रहे थे, काफी समय से, लेकिन प्रोबेबली किसी भी गवर्नमेंट ने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। जब भुज में जब अर्थक्वेक आया तो तब स्टेट गवर्नमेंट को ने इसको बहुत सीरियसली लिया और बहुत ही स्ट्रांगली इसको रखा, और एज ए रिजल्ट ऑफ भुज अर्थक्वेक हम लोग देखते हैं इंडिया में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज अ यूनिट आई, जो नेशनल लेवल में पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में हम सबको बताती है। Recently, Kedarnath tragedy हुई, which resulted into loss of so many things. So उसकी भी स्टडी करने के लिए और उसको भी रीप्लान करने के लिए, रीस्टैब्लिश करने के लिए केदारनाथ टाउनशिप को सैटेलाइट डेटा का बहुत एक्यूटली यूज किया जाने लगा। जो बहुत ज्यादा रीसेंट जो डिजास्टर आया दैट इज चमोली डिजास्टर, जो 10:30 बजे के लगभग ऑल ऑफ सडन वाटर लेवल जो ऋषि गंगा था वहां का बढ़ गया। तो जब हाई रेजोल्यूशन डेटा सेट्स को देखा गया तो तब ये पता चला कि एक फीचर यहाँ से, जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक लैंडमास गिरा जिसके साथ काफी स्नो कवर गिरा है नीचे, और जिसकी वजह से वाटर लेवल ऑल ऑफ सडन फ्लडिंग टाइप ऑफ सिचुएशन आ गई। और सैटेलाइट डेटा और जीआईएस को यूज करके एस्टिमेट किया गया कि कितना लेवल ऑफ वाटर रहेगा और फ्लडिंग कहां तक हो सकती है। तो इस तरह से बहुत ही क्विकली विद इन आवर्स सैटेलाइट डेटा को यूज करके इस तरह के असेसमेंट्स किए गए। सो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग इनपुट्स जो होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स हो जाते हैं। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो जिसको 9/11 जनरली बोला जाता है, यूएस में एक एरोप्लेन 2 टावर्स के बीच से गुजर गया था। सो दीज आर दोस ट्विन टावर्स जिसके बीच से वो एरोप्लेन क्रैश किया और जिससे पूरे वर्ल्ड को पता चला कि टेररिज्म क्या होता है। और ये जो राइट में फोटोग्राफ है, दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ सेम एरिया आफ्टर 72 आवर्स, 3 दिन बाद। सो अब आप यहाँ का स्मोक, डस्ट, ये सब देख के आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम एक्चुअली ग्राउंड में आई होगी कि 3 दिन बाद भी इस तरह का स्मोक या डस्ट चारों ओर थी। सो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जब लोग डिजास्टर्स की बात किया करेंगे या जब उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस लिखा करेंगे तो तब रिमोट सेंसिंग डेटा और अच्छी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के जैसे यूज होगा टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर्स। अब अगर हमारे पास इस तरह के डेटा सेट्स हैं तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे ये एग्रीकल्चर एरिया है, दिस इज इन नॉर्मल कंडीशन एंड दिस इज आफ्टर हेल स्टॉर्म। जैसे ओलावृष्टि हो जाती है, एक्सेस ऑफ रेनफॉल हो जाता है, तो जितना ये पिंक एरिया है या रेडिश एरिया है ये पूरा एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, ये सेटलमेंट्स हैं। तो जब ओलावृष्टि हुई या ज्यादा बारिश हुई
तो उसके कारण पूरा एग्रीकल्चर एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया. सो दैट इज वन ऑफ द डिजास्टर्स विच इज रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ एग्रीकल्चर एरिया. सो हम सैटेलाइट डेटा से क्या कर सकते हैं, क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ये लॉस है ये स्लाइट है, मॉडरेट है या सीवियर है, और फिर उसके ऊपर कैडेस्ट्रियल मैप डाल के, जो खसरा खतौनी जिसको बोलते हैं, वो डाल के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लैंड होल्डिंग्स किसकी हैं. तो आपको पता चल रहा है ग्राउंड में लॉस क्या हो रहा है, और आपको पता चल रहा है कि ये लैंड होल्डिंग किसकी है. तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत एम्फेसिस दिया कि हर किसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि उसको कोई भी कंपनसेशन, कोई भी मुआवजा मिल रहा है तो वो डायरेक्ट मूव हो सके. सो इस तरह से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात हो रही है कि अगर एग्रीकल्चर एरिया में डिजास्टर के कारण कोई लॉस होता है तो कैसे गवर्नमेंट उसको क्विकली असेस कर सकती है, और जो भी कंपनसेशन, जो भी मुआवजा देना है, उसको विदाउट मिडलमैन, बिना बिचौलिए के डायरेक्ट उसको जो भी विलेजर है या जिसको भी हाउस होल्ड है उसको उस तरह का ट्रांसफर किया जा सकता है. तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के में इस तरह के इनपुट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऐसे ही एक बहुत रेगुलर इंसिडेंसेस हम लोग कंट्री में देखते हैं जिसको हम लोग फॉरेस्ट फायर बोलते हैं. चाहे आप हिमालयाज में देखो, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सब में, या सेंट्रल इंडिया में देखिए, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में. सो समर्स में अक्सर फॉरेस्ट फायर हो जाती है एंड प्रोबेबली हर साल होती है. तो अगर आपके पास सैटेलाइट डेटा है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुई है तो इस तरह से पूरा स्मोकी एरिया दिख रहा है. सो हम उसको प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, हम फायर स्कार्स, कहाँ पे फायर हुई है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और अगर हमें ये फायर स्कार्स पता है और लगभग 1030 के लगभग सैटेलाइट डेटा कैप्चर होता है, तो मैं GIS का इस्तेमाल करके, जिसमें एल्टीट्यूड हो, स्लोप हो, आस्पेक्ट हो, डिस्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडी हो, विंड डायरेक्शन हो, कुछ क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस हो, मैं उनको इनपुट करके मैं मॉडल कर सकता हूं कि कैसे वो फॉरेस्ट फायर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, रात के 9 बजे तक कैसे स्प्रेड कर रही है और किस डायरेक्शन में जाएगी. तो अगर मुझे चेक करना है, उसको मिटिगेट करना है, बुझाना है आग को, तो जब वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा हो जाती है तो मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस तरफ को फैल रही है, ताकि मैं उसको उसी तरह से हैंडल कर सकूं. तो आज की तारीख में लोग GIS ये सब यूज करके इस तरह का एस्टिमेट्स भी कर सकते हैं और फॉरेस्ट फायर से प्रिवेंशन भी किया जा सकता है. दूसरा, हम लोग एक बहुत कॉमन चीज देखते हैं, यू हैव प्लान्ड सिटीज और यू हैव अनप्लान्ड डेवलपमेंट और प्लान. तो प्लान डेवलपमेंट में यू गेट टू सी वेरी क्लियर कट स्ट्रक्चर, अनप्लान्ड में बहुत ही रैम्पेंट होता है. लेकिन बहुत बार लोग क्या करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं. प्लान तो था लेकिन एक कमरा बढ़ा दिया, उसमें एक थोड़ा सा आगे को बालकनी कर दी. तो अगर प्लान्ड एरिया में कुछ भी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो उसके कारण जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए फायर इंसिडेंसेस हो गई, फ्लडिंग हो गई, या लाइटनिंग हो गई, या कोई अर्थक्वेक के कारण कोई बिल्डिंग ये सब डिस्ट्रक्शन हो गई, तो वहां से इवैक्यूएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आप देखते हैं सिटीज में बहुत नैरो गलियां वो सब रहती हैं. तो इवन इन प्लान्ड एरियाज इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इलीगली अपने एरियाज को एक्सटेंड कर रहे हैं. तो अगर कोई सैटेलाइट डेटा को रेगुलर मॉनिटर करे हर साल या हर 2 साल बाद, तो इस तरह के कोई भी इलीगल एक्सटेंशंस जो हो रही हैं उनको मॉनिटर करना रिलेटिवली बड़ा आसान हो जाता है. सो बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ डेटा सेट, बेसिकली यू कैन एनेबल कि कैसे मैं कोई अनफोर्सीन डिजास्टर इवेंट के चेक कर सकता हूँ कि कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शंस तो नहीं हो रही हैं जो डिजास्टर के टाइम में बहुत अनफ्रेंडली हो जाएंगी. इसी तरह से लोग सॉलिड वेस्ट, जो कचरा जो होता है, उसको डंप करते हैं और जनरली उसको रिवर के आसपास डंप कर देते हैं, जबकि वो नोटिफाइड लोकेशंस नहीं है. दीज आर, इफ आई से, इलीगल डंपिंग. तो उस तरह की लोकेशंस को भी हाई रेजोल्यूशन, और आज की तारीख में जब आपको 25 सेंटीमीटर्स या 30 सेंटीमीटर्स का डेटा मिल रहा है, तो इस तरह के डिटेल्ड, इससे भी बेटर आप असेसमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. दिखने को तो ऐसा ही लगता है सॉलिड वेस्ट डंपिंग हो रही है, बेसिकली फिर ये वाटर में जाता है, वाटर से फूड में जाता है, फूड से ह्यूमन बीइंग में आता है, और बहुत बार आपको रिजल्ट में ऐसा दिखता है कि नियर बाय जो ग्राउंड वाटर है
वो इतना पॉल्यूट हो गया कि नियर बाय जो भी लोकेलिटीज हैं उनमें डिफरेंट तरह की डिजीजेस, उस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स हम क्या देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में सेटलमेंट्स बढ़ने के कारण टेम्परेचर राइज हो रहा है। जैसे आपके वहाँ अहमदाबाद में गांधीनगर में एक मिहिर भट्ट साहब हैं, उनका एक इंस्टीट्यूट है जो डिजास्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो उन्होंने अर्बन हीट स्ट्रेस पे बहुत काम किया, स्ट्रेस पे। सो अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंक्रीट एरियाज डेवलप हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके कारण लैंड सरफेस टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो उसको मिटिगेट करने का क्या तरीका है कि हमारे पास ग्रीन कवर होना चाहिए। अब ग्रीन कवर कितना होना चाहिए, तो उसको अगर हम मैप करें पर कैपिटा में, तो हमको दिल्ली के केस में हमको ये दिखता है कि जितना ये रेड और ऑरेंज एरियाज हैं, ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ग्रीन कवर बहुत ही कम है। WHO बोलता है कि ग्रीन कवर शुड बी 9 स्क्वायर मीटर पर कैपिटा, और इन सारे एरियाज में इट इज मच लेसर देन दैट। अगर इसको मैं नॉर्मलाइज भी करूं किसी तरह से, एरिया से, पॉपुलेशन से, तो तब मैं देखता हूं कि ये प्रॉब्लम और ज्यादा ग्लेयरिंग है। और ये क्यों है? क्योंकि आपका ग्रीन कवर जो एक्चुअल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कुछ लोकेशंस में। तो मैं ऐसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे अर्बन ग्रीन स्पेसेस बनाने चाहिए, अर्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, ताकि आप जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको कम कर सको। अगर आप एम्बिएंट टेम्परेचर को कम नहीं करते हैं तो आपकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे जो क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, ओजोन है, वो आपकी इन्वायरमेंटल क्वालिटी को बहुत खराब करते हैं। तो स्टडी ये बताती है कि जहां पे भी ग्रीन स्पेसेस की कमी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ्स, वहां पे परसिस्टेंट इन्वायरमेंटल एयर पॉल्यूशन रहेगा। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली ये सब की जब बात करते हैं या मेट्रो, तो हर कोई सर्दियों में बोलता है, विंटर्स में पॉल्यूशन। विंटर्स में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक्सपेंड भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और मंथ्स में उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे ग्रीन स्पेसेस नहीं है। तो IUCN ने एक टर्म दी है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हमें ग्रीन स्पेसेस डेवलप कर दें। क्यों डेवलप कर दें? क्योंकि जो भी ये चेंजेस के रीजंस हैं, वो या तो आपका अर्बनाइजेशन है, स्प्रॉल हो रहा है, या इंटेंसिफिकेशन, जो सेटलमेंट्स की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स को अगर हमको चेक करना है, तो या तो हमें अपने अर्बन ग्रीन स्पेसेस बढ़ाने हैं, या हमें अपने वेटलैंड्स जो हैं उनको मेंटेन करना है। जैसे पॉन्ड्स होते हैं, उनको हमको वेल मेंटेन रखना है। नहीं तो हमारे पास जो लोकल एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे इंसिडेंट्स बहुत होंगे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी आपने पीछे देखा होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ऑल ऑफ सडन ग्लोबली और इंडिया में तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया कि आपका जो सरफेस टेम्परेचर है, या जो आपका टेम्परेचर जो है, वो बहुत ज्यादा राइज हो गया। इनफैक्ट कनाडा में तो एक डिजीज को नाम दे दिया गया, क्लाइमेट चेंज डिजीज। सो उन चीजों को रोकने के लिए, पहले हम सोचते थे ये सिर्फ बूढ़े लोगों को और छोटे बच्चों को ही इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये सारे एज ग्रुप्स को, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे उनको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमको उसके लिए अर्बन ग्रीन स्पेसेस बढ़ाने या वेटलैंड्स को रिजुविनेट करना है। तो दिल्ली में हम लोगों ने देखा देयर आर 1044 वेटलैंड्स जो हुआ करते थे हिस्टोरिकली, और फिर जब उनकी सिस्टमेटिकली देखा गया तो ये पाया कि लगभग उसमें से 600 ऐसे हैं जहां पे कंक्रीट बिल्डिंग्स आ गई हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज आ गए हैं, डिस्पेंसरीज आ गई हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ गए, और उनको हम रिजुविनेट नहीं कर सकते। और जो बचे हैं उसमें से लगभग 150 ऐसे हैं जिनको हम रिजुविनेट कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली जल बोर्ड है, उसने अराउंड 29 वेटलैंड्स को लिया है कि हम इनको रिजुविनेट करेंगे। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। रिसेंटली हमने देखा, एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर CR बाबू, अभी रिसेंटली उनका न्यूज़पेपर वो सब में काफ़ी आर्टिकल्स आए थे और उनको ग्रीन डॉक्टर बोला गया। तो उन्होंने पिछले 10-15 सालों में एक बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसको हम यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क बोलते हैं, और एक नीला हॉर्स वेटलैंड, उसको रिजुविनेट करके दिखाया, दोबारा से नेचर को रिजुविनेट बैक, प्रकृति को वापस ला के दिखाया। और
उनको लगा कुछ समय, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, बहुत ही सिस्टमेटिकली किया. नाउ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, दे आर टेकिंग हिज कंसल्टेंसी ताकि इस तरह के अर्बन ग्रीन स्पेसेस या वेटलैंड्स को हम रिजुविनेट करें. तो ऐसा नहीं है कि दिस इज इम्पॉसिबल, वन शुड बी एबल टू रिट्रीट दिस. अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, हमें हमेशा उस तरह की प्रॉब्लम रहेगी. और वो जो अर्बन फ्लडिंग जो हो रही है उसको भी आप एडवांस में देख सकते हैं, आप उसको मॉडल कर सकते हैं. ये हमने एक्चुअल रेनफॉल का डेटा लिया 26 जुलाई 2005 का, और रोड नेटवर्क लेके हमने साइमुलेट करने की कोशिश की, और हमने ये पाया कि हम लोग एडवांस में इस तरह की मॉडलिंग कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे फ्लडिंग होगी. ये रेड में जो आपको कर्व दिख रहा है ये एक्चुअल ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ फ्लडिंग है, और जो ग्रीन में कर्व दिख रहा है ये जो मॉडल करके आया है वो है. तो आप देखिए डिप्स जितने भी हैं वो बिल्कुल सेम पैटर्न में है. तो इसका मतलब आप लोकेशंस बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो आपको बताता भी है कि कितना घुटने तक पानी आएगा, कमर तक पानी आएगा, या नीचे नीचे पानी रहेगा. इस तरह का फ्लडिंग सिनेरियो भी आप उसमें डेवलप कर सकते हैं. हमने यही चीज बेंगलोर में भी करने की कोशिश की, जस्ट टू सी कि हमारा मॉडल किस तरह से काम करता है. तो आज की तारीख में आपके पास GIS का इस तरह के टूल्स हैं ताकि आप इस तरह के मॉडलिंग और इस तरह के असेसमेंट्स एडवांस में कर सकें, और आप बता सकें म्यूनिसिपैलिटीज को, गवर्नमेंट्स को, कि किस तरह के डिजास्टर्स आने के चांसेस हैं. और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि हम अपनी वाटर बॉडीज को या ग्रीन एरियाज को श्रिंक कर दे रहे हैं, या वहां पे नए सेटलमेंट्स ले आ रहे हैं. ये जितने ये ब्लू कलर के पॉलीगन्स बने हुए हैं, ये ड्रॉ किए हैं, ये सारे वेटलैंड्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, जो सर्वे ऑफ इंडिया टोपो शीट में हमें पता चलता है. और अब जो पीछे बैकग्राउंड में है वो गूगल अर्थ की इमेज है. तो आपको ये दिखता है कि जितने आपके वेटलैंड्स सब हैं उन सब में सेटलमेंट्स आ गए हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं. इसके साथ ही हम अर्बन ग्रोथ को भी मॉडल कर सकते हैं, उसको भी मैप कर सकते हैं. अगर हमें पता हो 1992 में क्या सिनेरियो था, 2000 में क्या था, 2010 में क्या था, तो ये हम सैटेलाइट डेटा से पिक कर सकते हैं. और GIS में हम मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ 5% होगा, 10% होगा या 30% होगा, तो कौन से लोकेशंस ऐसे हैं जहां पे इंटेंसिफिकेशन ऑफ अर्बन एरिया हो जाएगा या नया अर्बन एरियाज आ जाएंगे. तो आप प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग जो है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, उस तरह के टूल्स भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में किस तरह के हमें चेक एंड बैलेंसेस बनाने हैं उसकी हम स्टडी कर सकें. सो इस तरह के काफी केस स्टडीज हैं जो हमें दिखाती हैं कि हम रिमोट सेंसिंग GIS से डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस या जो रिस्क रिडक्शन है उसके लिए प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं. अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं जो कोई भी कर सकता है, मतलब you and I, anybody can do it. जैसे जनरली हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया में 57% एरिया ऐसा है जहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं, उसमें से 12% ऐसा है जहां पे सीवियर आते हैं, 68% एरिया ऐसा है जहां पे ड्रॉट्स होते हैं, 12% एरिया जितना कोस्टल है वहां पे फ्लडिंग होती है या कुछ पार्ट्स हमारे गेंजेटिक प्लेन्स के भी हैं, 8% में साइक्लोन्स आते हैं. तो इंडिया में बहुत ही लिमिटेड स्पेसेस ऐसे हैं जहां पे किसी तरह का डिजास्टर नहीं होता है या हैजार्ड नहीं होता है. अदरवाइज कोई ना किसी एरिया में कोई ना कोई हैजार्ड जरूर प्रिवेलेंट है, और कुछ लोकेशंस ऐसी है जहां पे एक से ज्यादा हैजार्ड्स प्रिवेलेंट है. इसका मतलब मल्टीपल हैजार्ड्स की प्रॉब्लम है. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोशिश की डेवलप करने की एक मॉडल जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये देखना चाहा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो वाकई मल्टीपल हैजार्ड से वल्नरेबल हैं. तो जिसमें हमने एक्सपोजर्स देखे, साइक्लोन्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड्स, सी लेवल राइज, सेंसिटिविटी देखी, फॉरेस्ट कवर, मार्जिनल वर्कर्स, नेट सोन एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रोटेक्टेड एरियाज, अडेप्टिव कैपेसिटी देखी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, लिटरेसी रेट, मेडिकल फैसिलिटीज, रोड फैसिलिटीज. सो हमने एक लिमिटेड सेट ऑफ डेटा सेट लिया, और ये डेटा सेट्स हमने कहाँ से लिए? एक्सपोजर के लिए हमने NDMA से लिया, ड्रॉट मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से लिया,
और सेंसस रिमोट सेंसिंग डेटा लिया हमने सी लेवल राइज के लिए। सेंसिटिविटी के लिए हमने सेंसस ऑफ इंडिया का, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, या एनविस से या इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से डेटा लिया। अडेप्टिव कैपेसिटी जितना है सेंसस ऑफ इंडिया से डेटा लिया, और इस सारे डेटा को नॉर्मलाइज करके हमने ये असेस करने की कोशिश की कि कहाँ पे किस तरह की वल्नरेबिलिटी है। तो हमारे पास एक्सपोजर है, सेंसिटिविटी है और अडेप्टिव कैपेसिटी है। तो जब हम एक्सपोजर देखते हैं तो पूरा ये रेड वाले जो एरियाज हैं ये ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर है, मतलब एक से ज़्यादा डिजास्टर्स आ सकते हैं। ऑरेंज वाले में भी केसेस ऐसे हैं। ब्लू ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सियान ऐसे जहाँ पे 1 डिजास्टर वर्क्स। जब हम सेंसिटिविटी देखते हैं तो ये बिल्कुल उलट है, सेंसिटिविटी और लोकेशंस में ज़्यादा है। अडेप्टिव कैपेसिटी देखते हैं तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। और जब मैं इन तीनों चीजों को मिलाता हूं तो मुझे दिखता है कि ये पूरा एरिया जो है, these areas have very high degree of disaster vulnerability. These areas are second none. Even Gujarat में some areas have very low, but few of the areas they have somewhat medium to high degree of vulnerability. So हमने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में किया पूरे इंडिया के लिए। आप लोग इसको वार्ड लेवल में कर सकते हैं, जोन लेवल में कर सकते हैं, जो भी सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं आपके रिस्पेक्टिव लोकेशंस में, उसके लिए इस तरह का डेटाबेस बना सकते हैं। इसी को हमने अर्बन पॉपुलेशन के लिए देखा कि अर्बन पॉपुलेशन में कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं और कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स लीस्ट और नन है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स वन शुड बी एबल टू डू। सो मतलब थ्रू दिस मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग जिस भी लोकेशन में रहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स के, वार्ड्स के, और अगर सब यूनिट्स भी हैं उसके डेटा जनरेट करके इस तरह की वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आपको करनी चाहिए कि किस तरह के डिजास्टर से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब दूसरा एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क ट्रांसफर। रिस्क ट्रांसफर मतलब हमें पता है रिस्क तो है, मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ, कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। जब भी जैसे हम लोगों की जॉब वो सब लगती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कुछ इंश्योरेंस ले लें, LIC ले लें, मैक्स का ले लें या हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। तो सब लोग बोलते हैं वो इनकम टैक्स वो सब बचाने के काम आता है, बट बेसिकली वो एक इंस्ट्रूमेंट है रिस्क ट्रांसफर का। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कल कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम कैसे उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर ऑल ऑफ सडन कोई बीमारी डिस्कवर हो जाए और मुझे हॉस्पिटल जाना हो तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मेरा कॉस्ट उससे निकल जाता है। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई तो उसकी फैमिली को कुछ इंश्योरेंस से पैसा मिलता है। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रिस्क इंश्योरेंस। तो सभी लोग आजकल मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस तो कर ही रहे हैं, बट साथ के साथ हेल्थ इंश्योरेंस वो सब भी कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि शायद हमें जो बिल्डिंग्स जो हैं उनकी भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो उनके इंश्योरेंस की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ये देखते हैं कि कैसे उनकी इंश्योरेंस की जा सकती है। तो हमने 3 लोकेशंस दिल्ली में सेलेक्ट की। एक कैनॉट प्लेस के आसपास वाला एरिया दैट इज कॉमर्शियल, एक नारायणा के आसपास का एरिया विच इज इंडस्ट्रियल, एक RK पुरम के आसपास का एरिया विच इज रेजिडेंशियल। और इन तीनों एरियाज में हमने कितनी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स में क्या वो कॉमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, अनप्लैंड हैं, प्लैंड हैं, उस तरह के एट्रीब्यूट्स कलेक्ट किए। उनकी हाइट कितनी है ताकि हम जान सकें उधर कितनी स्टोरीज हैं, 5 स्टोरीज हैं, 10 स्टोरीज हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन टाइप कैसा है, वेदर इट इज कंक्रीट, ब्रिक, स्टोन, और ये सारी चीजें हम लोगों ने उस तरह का डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया। फिर हमने ये निकाला कि उन इंडिविजुअल बिल्डिंग लेवल में मैं बात कर रहा हूँ, हर एक घर में what kind of exposure is there, whether it is low, very high, तो डिपेंडिंग ऑन कि वो फॉल्ट लाइन से कितना दूर है, कितना डेंजर है वहाँ पे, और उधर किस तरह का रिस्क है। तो हमने ये सारा डेटाबेस हर लोकेशन के लिए बिल्डिंग वाइज बनाया। एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या है, हमारे पास हर बिल्डिंग का उसकी हाइट, नंबर ऑफ स्टोरीज, ईयर ऑफ बिल्टअप, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी ऑक्यूपेंसी है। हर उधर अर्थक्वेक की वजह से सिस्मिक जोन्स, सॉइल, लिक्विफिकेशन, जियोलॉजी, लैंड यूज है।
और हर घर का हमारे पास पिन कोड, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें। जब मैं इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करता हूं तो मैं एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बना लेता हूं कि अगर मैं किसी भी बिल्डिंग में क्लिक करूं तो मुझे बताता है उसका एड्रेस क्या है, स्ट्रीट क्या है, बिल्डिंग एज क्या है, स्क्वायर फुटेज क्या है, टाइप क्या है, कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है, उसका पिन कोड क्या है, और वो एक रिस्क स्कोर दे देता है। वो ये बताता है कि जो ये रेड है इसमें रिस्क स्कोर इज वेरी हाई, जो ये ग्रीन है इसमें रिस्क स्कोर इज लो, जो ऑरेंज है उसमें रिस्क स्कोर इज स्लाइटली हाई। तो इस तरह की चीजें हम जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि कल मान लीजिए मैं बिल्डिंग, अपने घर को इंश्योर करना चाहता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए मेरे बिल्डिंग का किस तरह का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, कोई इस तरह का अटेम्प्ट करता ही नहीं है। लेकिन बैंक बहुत इंटेलिजेंटली करता है। जब भी आप फ्लैट खरीदने के लिए बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो आपको 20 लाख का उसने लोन देता है, साथ में एक पेपर में साइन कराता है, वो बोलता है सर आपके लोन को हम इंश्योर कर रहे हैं कि कल बाय चांस कुछ ना कुछ आपके साथ कैजुअलिटी हो जाए तो हम आपका पूरा लोन माफ कर देंगे, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम लोग बहुत हैप्पीली उस डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं और हर साल 800 रुपया या 1200 रुपया या 1800 रुपया इंश्योरेंस का देते हैं। तो हम उस वक्त ये ध्यान नहीं देते अरे ये रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, बैंक अपने लोन को इंश्योर कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों को भी सोचना है कि कैसे हम अपनी हेल्थ को, खुद को, अपनी एसेट्स को इंश्योर कर सके, क्योंकि कल कोई अगर डिजास्टर आए और हमें किसी चीज का लॉस हो जाए तो मैं उसको कैसे कवर कर सकता हूँ। इसको करने के लिए आपको अपना एरिया बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, अपने सराउंडिंग आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि हर किसी को अपने सराउंडिंग एरियाज को मैप करने की कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे एनर्जी पॉइंट्स क्या है, वेस्ट वाटर कहाँ जा रहा है, ट्रांसपोर्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या है, स्कूल्स कितने हैं, वाटर सप्लाई क्या है, टेलीकम्युनिकेशन क्या है, हेरिटेज साइट्स क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके आसपास, वो सारे आपको किसी ना किसी तरह से मैप करने चाहिए। जैसे हमने जीआईएस यूज करके पणजी के लिए और विशाखापट्टनम के लिए टूरिज्म एंड हेरिटेज, टेलीकम्युनिकेशन, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस जहां लोग पूजा पाठ वो सब के लिए जाते हैं, हर एक रिसोर्स को हमने मैप किया और हमने उसको देखा कि वहां पे किस तरह की फ्लडिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और रिसोर्सेज में क्या इंपैक्ट आएगा। जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल, जैसे ये एक वीडियो है, तो जब हैवी रेनफॉल होगा तो जो एरियाज रेड हैं और ऑरेंज हैं वहां पे फ्लडिंग होगी, जो ब्लू हैं वहां पे लो लेवल फ्लडिंग होगी, जो ग्रीन है वहां पे बहुत लो लेवल लेकिन फ्लडिंग होगी, और जहां पे कुछ नहीं है वहां पे फ्लडिंग नहीं है। तो ये पूरा एरिया फ्लडेड रहेगा, नॉट वेरी हाई बट स्टिल फ्लडिंग विल बी देयर। रेड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर ये बता रहा है वहां पे पेट्रोल पंप है क्या, स्कूल है क्या, नर्सिंग होम है क्या, मेडिकल स्टोर है क्या, पावर हाउस है क्या, इंडस्ट्रीज हैं क्या। तो हर एक रिसोर्स मुझे, अब जैसे ये एरिया में जितने ये इंडस्ट्रीज हैं, ये पेट्रोल पंप है, ये स्कूल्स हैं, ये सब प्रॉब्लमेटिक एरियाज में, ये इंडस्ट्रीज ये सब प्रॉब्लमेटिक एरियाज में है। तो लेकिन ये एरिया कोस्ट के पास है लेकिन फिर भी इधर प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ऐसा मुझे अपने सराउंडिंग को मैप करने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी डिजास्टर है, अर्थक्वेक है, फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड है, फायर है, उसके कारण किस तरह से रिसोर्सेज अफेक्टेड होंगे। हम सभी को जरूरत है कि हम लोकल लेवल में इस तरह के मैप्स बनाएं, इस तरह के डेटाबेस क्रिएट करें और अपने सराउंडिंग को इन्फॉर्म करें। ग्लोबल लेवल में तो लोग बता ही रहे हैं हमको कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। अभी आईपीसीसी की AR6 की रिपोर्ट आई थी जिसने ये बताया कि द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर्स जो होंगे वो बढ़ेंगे आने वाले समय में। मतलब और ज्यादा बारिश जो होती है या फ्लडिंग जो होती है उसका अमाउंट और ज्यादा हो जाएगा। और अगर वो पहले सिर्फ महीने में एक बार या 6 महीने में 2 बार हो रही थी तो अब हो सकता है हर 15 दिन में होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वी आर गोइंग टू लिव इन अ डिजास्टर प्रोन एरिया। सिर्फ हमें जरूरत है कि हम अपने आप को डिजास्टर रेजिलिएंट बना लें। जैसे मेल्टिंग अगर ग्लेशियर्स वो सबकी हो रही है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके कारण फ्लडिंग में क्या इंपैक्ट आएगा, वाटर लेवल क्या बढ़ेगा, उस तरह की स्टडीज करने की जरूरत है। उस तरह की चीजों को हमें कम्युनिकेट करना है। कोस्टल एरिया अगर सी लेवल राइज होगा तो कौन से एरियाज ऐसे हैं कोस्टल एरियाज जहां पे वाटर लेवल किस गति से बढ़ रहा है,
और कहाँ पे किस तरह के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। तो या मैं तो आपको पूरा इंडिया की कोस्ट लाइन दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ एक लोकेशन की कोस्ट लाइन को मॉनिटर कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह का वेरिएशन आया है पिछले 10 सालों में, 20 सालों में। और अब तो सैटेलाइट डेटा ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट ओपनली अवेलेबल है, आप कॉन्टिन्यूस हर साल उसको मॉनिटर करके आप निकाल सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी इज देयर और कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनमें इम्पैक्ट्स आ सकता है। ये देखिए, ये मक्का की इमेज है, ये है रेगुलर पीरियड में इतने सारे लोग वहां विजिट करते हैं, ये कोविड के दौरान इतने सारे लोग वहां विजिट कर रहे थे। तो मतलब इतना हाई रेजोल्यूशन डेटा हमें मिल गया है कि हम लोग एक एक आदमी को गिन सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे पर यूनिट एरिया। सो लोग कोशिश कर रहे हैं हाई रेजोल्यूशन डेटा सेट से इस तरह की चीजों को एक्सट्रैक्ट करने की। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये चाइना का हॉस्पिटल है। तो ये हॉस्पिटल का पार्किंग लॉट है, सेम हॉस्पिटल, ये पार्किंग लॉट है। ये रेगुलर टाइम में इतने सारे लोग वहां आते थे। ये जुलाई अगस्त में 2019 में ऑल ऑफ सडन लोगों का आना वहां बढ़ गया। अब भाई क्या ऐसा हुआ कि लोगों का आना एकदम से बढ़ गया? तो जब आप वहां के मेडिकल रिपोर्ट्स वो सब देखते हैं तो पता चला कि मैक्सिमम लोग जो आ रहे थे वो फ्लू रिलेटेड डिजीज के लिए आ रहे थे। और जिन्होंने ये स्टडी की है उन्होंने ये सिर्फ एक जगह नहीं देखा है, ये लगभग 18 to 20 हॉस्पिटल्स में देखा है एक ही से। तो उन्होंने ये पाया कि जो कोविड हमें 2020 में पता चला, मार्च में या फरवरी में या दिसंबर 2019 में लगा कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आने वाली है, असल में चाइना में वो अगस्त में ही आ गया था। तो सैटेलाइट डेटा सेट्स बहुत बार इस तरह की अननोन इंफॉर्मेशन भी इंटरप्रेट करने में हमें हेल्प करते हैं। अगर इसी को मैं थोड़ा सा और डिटेल में देखूं, ये देखो 2021 जब हम लोग सोच रहे थे कंट्री में कि अब कोई दिक्कत नहीं है, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जनवरी 2021 में ये 12 तारीख का है, ये 17 तारीख का है, ये 22 तारीख का है। ये पूरा खेत एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया, और वहां पे ये हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया और ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। लगभग 4000 लोगों के लिए हॉस्पिटल बन रहा है। और ये सिटी है, ये सिटी के ये सेटलमेंट है, ये सिटी के बाहर का एग्रीकल्चर एरिया है, जो पेरी अर्बन या रूरल एरिया जिसको बोलते हैं वहां। तो सैटेलाइट डेटा हमें इस तरह के इंडिकेटर्स भी बताता है कैसे और कंट्रीज या कैसे और लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और जो ग्लोबल पेंडेमिक आया था उसका नेचर किस तरह से था। जब इंडिया में गवर्नमेंट सेट सोशल डिस्टेंसिंग, तो हर कोई डिस्कस करने लगा, अरे सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, ये तो फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। व्हाट्सएप मैसेजेस में हर कोई यही क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन कोलोराडो में लोग ये मैप कर रहे हैं कि कहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, कहाँ पे कम लोग आ रहे हैं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा हो रहा है। तो जैसे हमें ट्रैफिक का पता चलता है गूगल मैप में, वैसे ही मोबाइल डेटा सेट्स को यूज करके पीपल वर एबल टू आइडेंटिफाई पैचेस कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लेसर देन नॉर्मल पीपल आर कमिंग, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मोर देन नॉर्मल पीपल आर कमिंग। सो such way technology should be used to identify newer things and better things. So जैसे मैंने कहा, आने वाले समय में डिजास्टर्स और ज्यादा बढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस बता रही है, ये साइंस बेस्ड एविडेंसेस बता रहे हैं। जो बिल्टअप एरिया होगा उसके आसपास बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बेटर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाएं। रिकवरी से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि रेजिलियंस बढ़े वहाँ पे, क्योंकि डैमेज अगर डिजास्टर आएगा तो सबसे ज़्यादा डैमेज उन्हीं लोकेशंस में होगा जहाँ पे बिल्टअप्स हैं। जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, सोशल जोन्स हैं, नेचुरल जोन्स में भी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उनकी शायद रिकवरी या रेजिलियंस रिलेटिवली थोड़ी सी ठीक लग रही है। इन एरियाज में हमें रेजिलियंस में ज़्यादा काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं रिमोट सेंसिंग डेटा हमको ये सारी चीजें करने में बड़ा हेल्प करता है। सिर्फ वर्ड ओवर लोग रिमोट सेंसिंग डेटा से इस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं कि हम डिजास्टर को और बेटर वे में समझ सकें और प्रिपेयर्डनेस और बेटर हमारी हो सके। जनरली लोग सोचते हैं GIS मैप्स बनते हैं, लेकिन मैप ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
जो हमें बताता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे किस तरह की दिक्कतें हैं या किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो जो स्पेशियल मैप्स जो हैं, जो रिमोट सेंसिंग जीआईएस से जो आते हैं, अगर आपको वाकई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना है तो आपको पूरा वॉल टू वॉल कंप्लीट जितना बेटर मैपिंग कर सकते हैं अपने सराउंडिंग की वो करनी चाहिए, ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें डिजास्टर के दौरान किस तरह से हम चीज़ों को हैंडल करेंगे या किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। अगर इस तरह के इनिशिएटिव्स हम लें तो हमारे पास ऐसा रहेगा कि ये सारे मैप्स मोबाइल्स में या आईपैड में या लैपटॉप्स में हम लोग देख पाएंगे कि कहाँ पे किस तरह की सर्विसेज मिल रही हैं और हम लोग क्विक डिसीजंस ले पाएंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा गवर्नमेंट ने एक आरोग्य सेतु ऐप बनाया था। अगर आप लोगों ने उसमें रजिस्टर किया हो तो उसमें वो बताता है 500 मीटर तक कितने इन्फेक्टेड एरिया लोग हैं, 1000 मीटर तक कितने इन्फेक्टेड लोग हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। वो कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आपको पहले से पता हो कि उधर इन्फेक्शन रेट क्या है। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी तो हम अपना भी बेटर ख्याल रख पाएंगे और हम कम्युनिटी का भी बेटर ख्याल रख पाएंगे। तो एज अ सोसाइटी विल बी मोर इन्फॉर्म्ड, मोर रिस्पॉन्सिबल। और वही शायद जरूरत है कि हम लोग इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बने, हमारे पास इंफॉर्मेशन हो और उसको हम अप्रोप्रिएटली यूज कर सकें। अगर ऐसी चीजें हम कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। एनडीएमए इसी चीज में एम्फेसिस देता है। अगर आप एनडीएमए का रिसेंटली आप देखें तो एक प्रोग्राम चल रहा है आपदा प्रहरी। अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर लास्ट अभी बीच में जब एनडीएमए डे सेलिब्रेट हुआ अक्टूबर में, तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोगों को आपदा प्रहरी बनाना है। हर गांव में, हर कस्बे में हमें हर किसी को कैसे डिजास्टर को हैंडल करना है उस तरह की चीजें, टेक्निक्स सिखानी है। और तभी ये ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट करेगी, कोई कंपनी करेगी। जब तक एज इंडिविजुअल लेवल हम लोग इक्विप नहीं होंगे, हमें नॉलेज नहीं होंगी, तब तक हम इस तरह की चीजें बेटर वे में नहीं कर पाएंगे। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, इसरो का जो यूनिट है, उसका एक अपना सपोर्ट सेंटर है, दे कॉल इट डिसीजन सपोर्ट सेंटर। और वो जितने मेजर डिजास्टर्स होते हैं उसके बारे में कम्युनिकेट करते रहते हैं रेगुलरली। साइक्लोन्स हो गए, फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गई, अर्थक्वेक हो गई, फॉरेस्ट फायर हो गई। आप जिस ज्योग्राफिकल एरिया से आते हैं, कंट्री के जिस पार्ट से आते हैं, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग टू चीज़ों को उसमें देख सकते हैं, ताकि यू गेट टू नो मोर अबाउट कि हम कैसे डिजास्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। सो मोटे तौर पर आज की तारीख में अगर हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स देखें तो हो सकता है कि जो प्रोसेस है, साइंस जो है, उसको समझने में थोड़ा सा और समय लगाएगी। लेकिन प्लानिंग अगर करनी हो, चेंज डिटेक्शन करने हो, चेंज एनालिसिस करनी हो, तो ये हमें क्विकली इंफॉर्मेशन देती है। शायद यही कारण है कि अगर हमें किसी भी डिजास्टर का स्प्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से एरियाज अफेक्टेड हुए हैं, ये सब क्विकली समझना है, तो सैटेलाइट डेटा सेट्स कुड बी वंडरफुल टूल्स। अगर हमारे पास वहाँ के अच्छे GIS डेटाबेसेस हैं, सो दैट कुड बी समथिंग ग्रेट। इनफैक्ट जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं तो ये मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम गुजरात। सो गुजरात पीपल शुड बी वेरी हैप्पी। यू हैव अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड बाइसेक, जिसने बहुत ही सिस्टमेटिकली इस तरह के डेटाबेसेस, शायद पहला स्टेट रहा होगा इंडिया में जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिकली किया। देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाज प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, जो बहुत ही ज़्यादा टेक्नो सेवी हैं, या जिनको इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना या उसको कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और वो प्रूव भी किया है उन्होंने ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन गुजरात एंड नाउ टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए शायद जब फर्स्ट टर्म में वो पहली बार आए थे, तो आई रिमेम्बर वेरी वेल, इन दिल्ली में विज्ञान भवन में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सबको बुलाया गया और उनके लिए 2 या 3 दिन की वर्कशॉप अरेंज की गई।
और उनको बताया गया कि कैसे सैटेलाइट डेटा सेट्स, कैसे GIS, कैसे GPS टेक्नोलॉजीज, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, तो उनको एफिशिएंटली मॉनिटर करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए यूज हो सकता है. So I see Gujarat as a wonderful example, डिपेंडिंग ऑन कि जिस तरह से बाइसेक ने जिस तरह से बहुत ही डिटेल लेवल में डेटाबेस वो सब बनाया. देयर वाज समबडी कॉल्ड डॉक्टर TP सिंह हु वाज डायरेक्टर ऑफ दैट प्लेस देन. आई स्टिल वेरी वेगली रिमेंबर कि बाइसेक हैड डन अ वंडरफुल जॉब जब rest of the country was not able to do. So the same Prime Minister, he has given something called as Prime Minister 10-point agenda. So what is it says कि mainstreaming disaster risk reduction in public expenditure. मतलब आप कोई भी काम करें, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर से कुछ भी एक्टिविटी होगी तो उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जरूर ध्यान रखा जाए. रिस्क कवरेज फॉर द ऑल, चाहे वो हेल्थ रिस्क है, चाहे वो डिजास्टर है, कोई भी स्कीम है, तो कैसे हम लार्जर कम्युनिटीज को हम इंश्योर कर सकते हैं और स्पेशली पुअरेस्ट को कैसे हम उनको कवरेज दे सकते हैं. देन ही टॉक्स अबाउट ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट एंड लीडरशिप ऑफ विमेन इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट. ग्लोबली साइंस ये मानता है कि जो भी हमारे डिजास्टर्स ये सब जो होते हैं, इससे फीमेल्स बहुत ज्यादा इनकाउंटर करती हैं. रूरल एरियाज में तो बहुत ज्यादा, इवन अदरवाइज. तो उनके पास एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे होते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर का 10-point एजेंडा बोलता है कि वी शुड ग्रेटली इन्वॉल्व people for leadership, especially women when it comes to disaster risk management. I am very happy कि Dr. Deepa Rawal is organizing this, so that is something very good. Or I don't know the gender balance in participants, but I wish कि ज़्यादा females भी इस बात को सुन रही हैं. Another thing which he says कि we should invest in mapping disaster risk, covering all kind of hazards. This is what most of you can very conveniently do. He talks about leveraging the technology so that more efficiency can be come. 1999 में उड़ीसा साइक्लोन आया था, तब भी हमारे पास रिमोट सेंसिंग, GIS, इस तरह की सारी चीजें थी, बट जो वहां की गवर्नमेंट थी उस वक्त वो बड़ी रिलेक्टेंट थी ये सारी चीजों को यूज करने के लिए. और पहले से बताया गया कि भाई साइक्लोन इज वेरी बिग, वेरी इंटेंस, बट समवेयर दे वर नॉट लेवरेजिंग ऑन द टेक्नोलॉजी. एंड व्हाट वी गॉट टू अंडरस्टैंड इज कि 10,000 लोग मारे गए. और जब अब आज के डॉक्यूमेंट्स वो सब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 10,000 नहीं, 14-15,000 लोग मारे गए थे क्या एक साइक्लोन से. कैन यू इमेजिन दिस? और उसको बोला गया सुपर साइक्लोन. व्हाई? बिकॉज पीपल वर नॉट लेवरेजिंग ऑन द टेक्नोलॉजी. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करें. और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्टेट्स में, डिफरेंट cities में, they should try to develop a network so that disaster issues को और better way में हम लोग handle कर सकें. We should make use of social media, mobile technology, not to send unnecessary messages, but related to communicating disasters, communicating shelter houses, कैसे हम इन चीजों को better way में handle कर सकते हैं. Equally important is local capacity building में कैसे हम investment करें कि disaster risk reduction, if those kind of things could be done, probably post disaster recovery based on जो भी हमारे past experiences रहे हैं वो हम लोग कर सकें. Last point, the Prime Minister says that we should bring about greater cohesion in the international response to disaster. Not only SAARC countries but beyond. कैसे हम एक दूसरे की globally help करें ताकि we become more resilient society, more resilient community. Because hazards were always there. Hazards will always remain there. We have to see कि उससे disaster ना हो. There is a thin line between hazard and disaster. जैसे ही, और ये देखा गया है कि जहां पे भी ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते, वहां कोई भी हैजार्ड आता है तो वो डिजास्टर्स बन जाता है. अगर प्रिकॉशंस लिए जाएं और देखा जाए कि जो सेंसिटिव जोन्स हैं वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने,
So probably we'll be able to reduce disasters. Hazards will always be there. What else probably we can do? We need, geospatial apps. जितने geospatial apps आते हैं आपको उनका यूज करना चाहिए. बहुत सारे लोग थे जब आरोग्य सेतु आया था तो बड़े रिलेक्टेंट थे कि यूज करना चाहिए. नहीं, करना चाहिए. व्हाई नॉट? वी शुड टेल कम्युनिटीज, वी शुड लर्न फ्रॉम कम्युनिटीज. करिकुलम में ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इस तरह की चीजों को, इवन इफ यू आर अ साइंस टीचर, bring these kind of aspects into the class. Bring some kind of coloring books kids के लिए. टीचर्स को ट्रेन कीजिए, इस तरह के प्रोग्राम्स में और ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए ताकि यू लर्न न्यूअर थिंग्स, और जो भी नेसेसिटी है एज ए स्ट्रॉन्ग लाइफ स्किल वो बन सके. Last thing which I will urge you, which was also said by in my PM 10-point agenda, please do mapping of your surrounding resources. When I say school, मतलब आपका department, आपका college, आपका university, whatsoever you call it, क्या social resources हैं, क्या सेफ्टी रिसोर्सेज हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह के डिजास्टर्स आ सकते हैं. अगर आप इतना भी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सराउंडिंग को बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर रेजिलिएंट बनाने में सक्सेसफुल रहेंगे. सो दिस वाज ऑल विच आई थॉट आई शुड कम्युनिकेट विथ यू एंड आई शुड शो यू कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कैसी चीज़ें की जा सकती हैं. सो आई विल स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन हेयर. अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको कुछ पूछना हो, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. यस मैडम, ओवर टू यू. जी, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है. Yes, sir. Okay, thank you very much, sir. Now the forum is open for interaction. Participants, would you like to interact, sir? Is open, particularly from civil engineering faculties. Okay. So, from feminine side of the participation, we have got, sir, somewhere around 25% of feminine participants. Am I audible? Okay. The video net. Okay. Then yes. Am I audible? Yes, madam. Yeah, there had been some connectivity. Okay. So I guess no interaction is there from participants. So they are still munching on what you have said. Particularly, it has been a big question of knowledge, like to start with the role of geoinformatics in disaster to the personal level, so society level to personal level, in what area it can have its role and its importance, because it will have a huge impact. The students can take a project in also in this direction, say mapping of our college or institute kind of thing. And what you have highlighted, like insurance and all that, so we should seek of our personal vulnerability to institute and at national level.
So we have got a lot to munch on. Thank you very much, sir. It has been very insightful on different aspects of bioinformatics, and we will be thinking over how to implement it and take further in research from our end, how we can help and contribute. Thank you once again, sir, for sparing your valuable afternoon session towards this training. Thank you very much, sir. And looking forward to further interaction in this type of programs. Thank you once again for being with us, sir. Thank you. Vinay, over to you. Yes, thank you. Once again, thank you, sir. This was a very wonderful session by you. Now, tomorrow is the third day of our short-term training program. So I hope all of you will attend it with all of your heart and mind. The first session will be by Dr. S.M. Yadav on the mega disaster of the India and the lesson learned through the analysis of the 2017 extreme precipitation and the flooding of semi-arid Banas River Basin, India at 11 a.m. That's all for today. Thank you for your participation and presence. Thank you all.